ایک بندے کی نا یاد کرنے کی اور دماغی صلاحیت جو ہوتی ہے وہ متاثر ہوئی. اس کو لگ رہا تھا کہ میرا دماغ اب صحیح کام نہیں کر رہا، تو یاد کرنے میں مسئلہ آ رہا ہے. اس نے بادام وغیرہ کھانے کے بجائے ایک فیصلہ کیا کہ میں ایک ہفتے کے لیے شکایتیں کرنا چھوڑ دیتا ہوں. اسٹاپ کمپلیننگ فار 1 ویک. اور وہ کہتا ہے کہ ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے دماغ کی اس صلاحیت میں واضح طور پہ بہتری محسوس کی. If you complain for 5 minutes then you have wasted these 5 minutes. وہ 5 منٹ ضائع کر دیں آپ نے. کمپلین کرنے والا ہر چیز کی کمپلین کرتا ہے، گھر کی، دفتر کی، تنخواہ کی، ہر چیز کی شکایت کرتا ہے. اور شکی مزاج جو آدمی ہوتا ہے نا، یاد رکھو اس کو شکی مزاج بندے ہی اچھے لگتے ہیں. کوئی بندہ کوئی اچھی بات کرے گا نا اس کو اچھا نہیں لگے گا. وہ آ کے کوئی شک کی بات کرے گا تو اس کو اچھا لگے گا. وہ نیگیٹو کوئی دیکھے گا. ایک بندہ کہتا ہے نا کہ جی میرے پاس 5 بہانے تھے کام نہ کرنے کے، تو کام تو ایک بہانے سے بھی نہیں ہونا تھا. 5 بہانے لے کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بہانہ لگاؤ، کام تو پھر بھی نہیں ہوگا. Some people, they are excuse makers. They find negative in each and every scenario. They are negative seekers. They are excuse makers. When you touch them, when you ask something from them, you get a vibe that this person is not interested in this task. وہ indecision کا شکار ہوگا deliberately. He is on a fence, sitting on a fence, and he is saying that I am perplexed where to go, right or left. آپ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا رائٹ پہ گرنا ہے کہ لیفٹ پہ گرنا ہے. آپ گر جائیں تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد آپ گر جائیں، پھر نہ سوچیں. آپ جہاں گریں گے ساری توانائی اب وہیں پہ لگائیں. جی غلط ڈیسیژن نہ ہو جائے تو چلے جائیں گے تو جلدی پتہ چل جائے گا غلط ہے کہ ٹھیک ہے. بیٹھے بیٹھے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا. So stop complaining and try to express gratitude. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سیکھے. شکر بڑی چیز ہے. Gratitude is directly proportional with progress. ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک میتھمیٹیکل ٹرمینالوجی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ویریبل بڑھے گا تو دوسرا اس کے ساتھ بڑھے گا، ایک کم ہوگا تو دوسرا اس کے ساتھ کم ہوگا. عام طور پہ اکنامکس میں ڈیمانڈ سپلائی کے اندر ہم یہ یوز کرتے ہیں. چیزیں بڑھیں گی، انفلیشن ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. میں نے وہاں پڑھا تھا اپنی اکنامکس میں. تو ڈائریکٹلی پروپورشنل کا مطلب یہ کہ گریٹیٹیوڈ بڑھتا جائے گا تو پروگرس بڑھتی جائے گی. دس مینس دیٹ وین یو ول انکریز دا گریٹیٹیوڈ, the progress in your life will automatically elevate. Is this right or not? It is absolutely right. Because when you will express gratitude, you will surely, you are confident that what I have. تو جب جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پہ جب آپ کانفیڈنٹ ہوں گے، وہ ریسورسز ہے نا، اویلیبل ریسورسز ہے، تو آپ بڑھیں گے. جب آپ کو اپنے اویلیبل ریسورسز پر ہی کمپلینٹ ہے تو پھر تو وہ ریسورسز آپ کو بڑھا نہیں سکیں گے. جب آپ کہیں گے میرے پاس یہ کچھ ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب آپ شکر ادا کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی ذات میں بہتری آئے گی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے. زندگی گزر رہی ہے آپ کی بھی، میری بھی، ہم سب کی آرڈنری مومنٹس ہیں، ریپیٹیشن ہو رہی ہے، وہی لمحات ہیں، وہی واقعات ہیں، وہی رشتے ہیں، وہی واقعات ہیں، وہی چیزیں گھومتی جا رہی ہیں روز. جب آپ شکر ادا کرتے ہیں نا تو انہی چیزوں کا ہی شکر ادا کرنا نا، کوئی ایسی چیز کا شکر ادا نہیں کرنا. جو آپ کے پاس ہے شکر اسی کا ادا ہوتا ہے. تو جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آرڈنری مومنٹس آف یور لائف آر بیکم پریشس. دے آر ناٹ آرڈنری بیکاز دس میڈل آف گریٹیٹیوڈ ہیز میڈ دیم پریشس. اب آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے کہ یار یہ چیز اچھی ہے کیونکہ میں نے اس کا شکر ادا کیا. اور شکر ہی آپ کی پرابلمس کا سلوشن لے کر آتی ہے. شکر بڑی چیز ہے. شکر کی سمپل ڈیفینیشن آپ کو بتاؤں، بڑی پیاری میں نے پڑھی. اگر کوئی چیز آپ کی طبیعت کے مطابق اور آپ کے مزاج کے عین مطابق ہو رہی ہے تو اس پہ شکر کرنا ہے، اور اگر طبیعت اور مزاج کے خلاف ہو رہی ہے اس پہ صبر کرنا ہے.
दिस इज इट, दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ शुक्र। और फरमाया कुरान मजीद में, अच्छा ये शुक्र और प्रोग्रेस की जो ये ब्रैकेट है, ये जो रिलेशन है, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन कुरान सूरह इब्राहीम 7 आयत नंबर 7। फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, और अगर तुम शुक्र नहीं करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। लोगों सारे मेरे खिलाफ भी अगर हो जाओ तो मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फरमाया था कि ए बनी इसराइल, तुम पे जो अल्लाह ने ये करम फरमाया कि तुम्हें फिरौन से निजात दी और तुम्हें आज़ादी दी। फिरौन का जुल्म कितना बड़ा था, फिरौन तुम्हारी बेटियों को जिंदा रखता था, बेटों को मार देता था और सख्त सजाएं दिया करता था। अल्लाह ने करम किया तुम पे, तो तुम शुक्र करो, और नहीं शुक्र करोगे तो अल्लाह को इसकी परवाह नहीं है। और इसी से पहले वाली आयत में रब फरमाता है कि तुम इन्हें अंधेरे से, हमने मूसा को निशानियां देकर भेजा ताकि ये इन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आए। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स दिस इज। दिस इज द ड्यूटी, दिस इज द जॉब असाइन्ड टू एवरी प्रॉफिट। टेक दिस पीपल फ्रॉम द डार्क एंड ब्रिंग देम टू लाइट। कैसे? अल्लाह की निशानियां दिखा के, अल्लाह की निशानियां दिखा के इन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आओ। और अंधेरे से रोशनी में लाना, एक बंदा कहता मैं अंधेरे से रोशनी में आ गया, उन्होंने उससे पूछा तुमने क्या किया? कहता मैंने 3 काम किए। कहते क्या काम किए? कहा सबसे पहले मैंने दिमाग को अच्छी सोच दी, ज़बान को अच्छे अल्फाज दिए और हाथ को अच्छे काम दिए, मैं अंधेरे से रोशनी में आ गया। हमने इसके ऊपर एक और चीज़ ऐड की कि ये मत कहो सिर्फ कि तुमने दिमाग को अच्छी सोच दी, ज़बान को अच्छे अल्फाज दिए और हाथ को अच्छे काम दिए, ये ना कहो, बल्कि ये कहो कि आई हैव इंट्रोड्यूस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन माई लाइफ एंड दैट वर्ड इज प्रायोरिटी, तरजीहात। अगर आप अच्छी सोच की बात कर रहे हैं तो 1000 सोचें अच्छी हैं, आपने कौन सी अच्छी सोचों को टॉप पे रखा? अगर आप अच्छे अल्फाज की बात कर रहे हैं तो तकरीर की फसाद तो बलागत बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे अल्फाज हो सकते हैं, आपने कौन से अल्फाज को टॉप पे रखा? और एक्टिविटीज़ भी बहुत सी अच्छी हैं, कौन सी अच्छी एक्टिविटीज़ को आपने प्राइमरी इंपॉर्टेंस दी? बिकॉज यू जस्ट हैव टू डू इट, जस्ट डू इट। फिर वो अंधेरे से रोशनी में आता है। याद रखें मेरी ज़िंदगी में सबसे अहम तरीन चीज़ ना जस्ट डू इट है। ये बहुत मुश्किल काम है। हमारे दिमाग ने हमें सबसे महंगा झूठ जो बेचा है ना, वो यही बेचा है कि वेट फॉर द राइट टाइम। देयर इज नो राइट टाइम, यू हैव टू स्टार्ट। आज आपसे कम लड़के, अपने स्कूल के क्लास फेलोज को प्रोब करो, अपने कॉलेज के लड़कों को देखो, आपसे कम सलाहियत थी। दे वर लेस प्रिपेयर्ड, लेस ब्रिलियंट, लेस जीनियस, दे वर लेस इंटेलिजेंट, दे वर लेस, बट नाउ दे आर अहेड। They're moving on a very big SUV and they're living in a very big bungalow and they have a very big setup. Why? The only reason is that you are still in the process of thinking and you are planning and they are executing. उन्होंने डिसीजन ले लिया। अच्छा, डिसीजन इतना अच्छा नहीं था उनका क्योंकि वो तो लेस है, वो तो लेस है ना, उनका डिसीजन भी लेस था, लेकिन वो ले लिया गया और आपने लिया नहीं। अभी तक आप मशवरे कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इंस्टा की रील में फंबोल रहे हैं, वो एक जो आपके ज़हन में बात उसको पका रहे हैं, अभी तक उबल रही है, वो उतर नहीं रही इंडिया। उसने प्लान करके एग्जीक्यूट कर दिया। आजकल तो नमाज का इतना थोड़ा टाइम है कि बंदा नमाज की नियत करे तो नियत करते करते ही असर से मगरिब गुजर जाती है। वो भी नियत कर रहा उठूंगा, कब उठेगा? वो तो घंटा गया। अभी मैं आ रहा था तो ईशा मैंने नमाज जमात से नहीं पढ़ी थी, तो मैंने रास्ते में सोचा मैं क्या करूं। मैंने कहा यार मैंने इनको यही सिखाना जाके कि डिसीजन ले लो। तो साहब ने मस्जिद आई, मैंने कहा मैं इस मस्जिद में पढ़ लेता हूँ। ईशा ना बाद में फिर सर्दियों में बहुत लंबी रात है ना, इसके बाद मैं ईशा पढ़ूंगा, आपको एक चीज़ चलती रहेगी साथ ना, वो मेरे साथ रहेगी। तो मैं उतरा, मैंने जाके खटखटाया तो दरवाज़ा भी बंद था मस्जिद का। अब देखें एक इशू भी आ गया कि पहले तो यहाँ गाड़ी रोकी, फिर मैं रुका, फिर मैं उतरा, फिर मैंने दरवाज़ा भी बंद था, लेकिन मैं अब उतर चुका था। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया कि इतनी देर अभी नहीं हुई कि दरवाजे बंद हो जाए मस्जिद के, इतना तो तजर्बा है। बंदा आया खिड़की से, मैंने उसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ मैंने नमाज़ पढ़नी है। कहता तो खोल दो इसको। उसने ऐसे किया, बंद हो गया। मैंने कहा तो खोल दो इसको, खोलने में लॉक ही लगता है और क्या है। उसने खोल दिया,
बड़े बेहतरीन वॉशरूम थे उस मस्जिद के, बड़ा अच्छा वजू था, अकेला माहौल था, और अच्छे तरीके से मैंने नमाज पढ़ी और मैं आ गया। कैसा था? एक सिंगल डिसीजन, हाँ, उसके रिपल इफेक्ट होते हैं। आप जाके किसी पानी को ऐसे करते हैं, छोटा सा आपने नुक्ता डाला, लेकिन एकदम से वो उसकी लहरें पैदा होती है ना। तो योर स्मॉल डिसीजन विल हैव अ रिपल इफेक्ट इन योर लाइफ. You know, the people who belong to mechanics or from physics or in IT, you may have learned the concept of chaos pendulum. आपने पेंडुलम का सुना है? पेंडुलम ऐसे हिलता है, हिलता जाता है, हिलता जाता है, हिलता जाता है। एक chaos पेंडुलम भी होता है। वो क्या होता है chaos पेंडुलम के, उसको हल्का सा छेड़ देना, इसको सर्च करना यूट्यूब पे, हल्का सा छेड़ दें, वो इतना बड़ा हिलता है कि वो सारा हिला देता है। ऐसे 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 होता है, मैंने देखा उसको। तो वो कह रहे थे कि ये हल्की सी बात आपकी जिंदगी को भी ना इतना हिला देती है। कोई हल्की सी बात ले आए, सिर्फ 3 आयतें रोज की, 1 सेब रोज का, 20 बादाम रोज के, 20 खा सकते हैं, 30 खा भी सकते हैं, तो ये 30 तक चाहते। मैं 28 खाता हूं क्योंकि मैं दूध नहीं पी सकता, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। खालिश दूध पीऊँ तो वो ऐसा कोई है जिस्म के अंदर कि वो फिर पेट खराब हो जाता है। तो इतना मसला नहीं है, अगर दूध आप नहीं पी सकते तो उतना कैल्शियम जो एक गिलास में होता है वो 7 बादामों में मिल जाता है आपको। और 30-28 जो आलमंड है वो सेफ लिमिट है, उससे ज़्यादा ना खाए, फिर वो कैलोरी एक्सेस हो जाती है। और आलमंड से भी जो ज़्यादा सुपर फूड है, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर फूड, वो तो वॉलनट है, दिमाग की तरह का होता है। तो वो कितने खा सकते हैं? 6 से ज़्यादा नहीं, वो बहुत हैवी चीज़ है। 6 इज इनफ, वरना कैलोरी एक्सेस हो जाएगा और भी उससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो मैं 2-2 करके खा लेता हूँ। जिस दिन मैंने शुरू किया था उस दिन मुझे बड़ा मुश्किल लगा, लेकिन वो छोटी सी बात है, कितनी देर लगती है आलमंड खाने में? गुजरता हूँ, वो रखी हुई है, मुश्किल नहीं किया मैंने इसको कि वो ऊपर करके रखा या पीछे करके रखा, नहीं, अपनी टेबल के सामने रखा ताकि आसान हो जाए। मेक सक्सेस एन ईजी ऑप्शन। फेलियर को मुश्किल कर दो, सक्सेस को आसान कर दो, तो वो हो जाती है, वो चलता है फिर साथ। अ सिंपल हैबिट डेली, जैसे रात को सोते हुए, मेरा पिछले दिनों क्लिप भी बहुत वायरल हुआ था, ये अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने कैसे कहना है, अल्लाह का शुक्र कैसे अदा करना है, कि आपने उसको जोड़ना है, जोड़ना है किसी न किसी चीज से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी आंखें सलामत रही, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज कोई हादसा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा सलामत मेरे सामने सो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने खाना खाया, मुझे नाली की जरूरत नहीं पड़ी। 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अकेले में अंधेरे में टांगे समेट के, लिस्ट बी को करेक्ट करके कि ये इससे मिल रहा है। यकीन करें बड़ा बड़ा सुकून होगा। यू विल फील अ सेंस ऑफ ओननेस। कभी कभार ना आप किसी चीज का हल डायरेक्ट ढूंढ रहे होते हैं, जबकि डायरेक्ट नहीं होता, उसको वहीं छोड़ के किसी बाईपास से आना पड़ता है। आप टूटे हुए हैं, आप समझ रहे कि मैं टूट गया हूं, आपका दिल थक गया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पर भी हैं, सॉफ्ट स्किल्स भी, लेकिन आप रुके हुए हैं। यू आर स्टॉप, यू आर नॉट क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, यू नो दैट योर लाइफ इज स्टक अप। देन यू विस्पर, व्हाट इज हैपनिंग माय अल्लाह, अल्लाह व्हाट इज हैपनिंग। मैंने सारे डॉट्स जोड़ लिए हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ रहा, फार्मूले लगा लिए हैं। वन थिंग इज मिसिंग, ओनली वन वर्ड, एंड दैट वर्ड इज अस्तगफिरुल्लाह। इस्तिगफार इज मिसिंग फ्रॉम योर लाइफ। You have to utter this word. This is the cheat code. This is the password. This is missing from your life. You have to say astaghfirullah. सिर्फ ये आपने जुमला बोलना था जिस वजह से आपकी लाइफ ऐसी जैम हुई है। इस्तिग़फ़ार ये सिर्फ तौबा नहीं है, सिर्फ गुनाहों से वो नहीं है, बल्कि ये दरवाजे खोलती है। You have not been forgotten. आपको भुलाया नहीं गया, बल्कि इस दफा आपके हाथ में देने से पहले आपके दिल को साफ करना जरूरी था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा, लोगों अल्लाह से माफी मांगो, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, क्योंकि वो माफ करता है, वो तुम्हें माल देगा, बेटों से मदद करेगा, तुम्हें बाग देगा और तुम्हें नहरें देगा। कुरान पढ़ रहा हूं। अब देखो अल्लाह के नबी ने एक बात कही है, तो माल, बेटे, नेमतें तो उस वक्त मिलती है जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन अल्लाह के नबी इस जगह पर खास तौर पे मेहनत को हाईलाइट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इस्तिग़फ़ार करोगे तो ये दरवाजे खुलेंगे। क्यों? इसलिए कि इस जगह पर इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। तो जब आपको लगे लाइफ ड्राई हो गई है बहुत ज्यादा, देन स्टॉप, डोंट चेज, भागना छोड़े, पहले पॉज एंड रिटर्न।
رکو اور رجوع کرو، کوئی کمی ہوئی ہے۔ اب ایک بندہ رزق کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے، رزق کے کتنے اور فارمولے دیے گئے ہیں، سورہ واقعہ پڑھو۔ آج آپ بیٹی کو یہ تو سکھا رہے ہو کہ جاؤ اور جا کے داماد سے اتنے اتنے پیسوں کا سوال کرو، یہ کرو، یہ نہیں پڑھا آپ نے کہ سورہ واقعہ مغرب بار پڑھنے سے گھر میں رزق چھما چھم برستا آگے؟ وہ بھی تو ایک ذریعہ ہے نا، وہ بھی تو ایک فارمولہ ہے۔ اللہ سے تجارت کرو اللہ زیادہ دے گا، یہ بھی تو ایک فارمولہ ہے۔ رزق کے وظائف جو آتے وہ بھی ایک فارمولہ ہے۔ نبی پاک کے پاس ایک بندہ آیا تھا، آ کر کہتا جی بڑا پرابلم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا گھر میں داخل ہو، سلام کرو، 3 بار قل اللہ شریف پڑھو۔ ایسے ہی ہے شیخ بھائی، 3 بار قل اللہ شریف پڑھو اور ساتھ سلام کرو آ کے۔ وہ کہتا گھر میں کبھی میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتے، گھر والے بھی باہر گئے ہوتے۔ کہا چلو کوئی نہیں، گھر میں ہے تو تم اپنے نبی پہ سلام بھیج لیا کرو۔ وہ اتنا ملا کہ وہ ڈل گیا، باہر دوسرے گھروں کو گیا۔ وہ آپ پھر آیا، کہنے لگا یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو زیادہ ہو گیا اتنا کہ سب کو جا رہا ہے۔ تو کہا یہ چیز ہی ایسی تھی کہ جو اس کے ارد گرد والے ہیں وہ بھی نمازیں جاتے ہیں، تو اس طرف بھی تو آؤ نا۔ خالی محنت کو فوکس کر رہے ہو، اور اگر محنت سے رزق مل رہا ہو اور وہ محنت اللہ سے دور کر رہی ہو اور مل رہا ہو، تو یہ تو ڈھیل ہو گئی، یہ تو خطرناک کام ہے۔ اگر ملتا جا رہا ہے اللہ کی یاد نہیں ہے، یہ تو بڑا خطرناک الارم ہے۔ یہ کسی بندے کو یوں دیکھو نا گئے کہ اس کو بہت مل رہا ہے اور وہ اللہ کی یاد میں منہمک نہیں ہے، تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک مکھی شہد کے مرتبان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اندر، اور باقی ساری مکھیاں کیا کہہ رہی ہیں، بڑی بات ہے، یہ تو پوری دنیا کے اوپر ہے کیونکہ شہد کے مرتبان کے اوپر ہے۔ جبکہ نہیں، اس سے پوچھو، وہ تو سٹک ہوئی ہے، تو مرنے لگی ہے۔ So you have to take care about that. سے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، بار بار کہنا بہت ضروری ہے۔ That you recall that this all is from Allah۔ شکر ہمارا موضوع ہے۔ تو کبھی کبھار بائی پاس سے بھی آئیں، کیونکہ جب آپ نے اپنی ترقی کا ارادہ کیا، کچھ بہتر بننے کا ارادہ کیا، اچھا ورکر، اچھا مسلمان، you want to change your life، then آپ نے کیا کرنا ہے یہ نہ سوچیں جتنی عمر آپ کی ہو گئی ہے، کیا چھوڑنا ہے یہ سوچیں۔ کیا کرنا ہے تو سب کچھ تو کر لیا، ڈگری بھی لے لیا، جاب بھی کر رہے، کیا چھوڑنا ہے یہ سوچیں۔ بہت کچھ ہم نے رکھا ہوا پاس، اتنا نہیں رکھنا چاہیے، but you have to leave۔ یہ چیزیں چھوڑیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا اور آ کر لمبی تقریر کر رہا تھا کہ جی یہ اسلام پابندی کرتا ہے، اسلام باندھ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا مسئلہ اصل میں سمجھ کا ہے کہ آپ سمجھے نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ آپ میرا خیال حیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ پابندی ہے، بات غلط کر رہے ہیں۔ is not suppression، حیا از پروٹیکشن۔ حیا از ناٹ سپریشن، حیا از پروٹیکشن۔ حیا کا مطلب آپ کو پیچھے کرنا اور گرانا نہیں ہے، حیا کا مطلب آپ کو بچانا ہے۔ یہ جو آپ ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت دوسرے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اسٹاپ چیزنگ ویلیڈیشن۔ حیا کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور میری نظر وہاں جائے گی جہاں اللہ کی رضا ہے، یہ حیا ہے۔ جب آپ اپنی نظر کو جھکاتے ہیں اور اپنے دل میں اٹھنے والے منفی ابال کو دباتے ہیں تو 3 چیزیں انعام کے طور پہ آپ کو عطا کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 is clarity، نمبر 1 is peace، نمبر 3 is focus۔ آپ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، آپ کو سکون ملتا ہے۔ اور یقین کریں جاتے جاتے کوئی گہری بد نظری ہو جائے نا کسی جگہ پر، گہری کسی ممنوع چیز کو زیادہ دیکھ لیا جائے، میرا خیال ہے آدھا دن تو اس کا افیکٹ جاتا نہیں ہے۔ میں نائی کی دکان میں جاتا ہوں، میں بھی کرا گیا ہوں خط، تو ویسے تو جاننے والا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس کو جاتے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ یار میں بالکل گانے نہیں سنتا اور میچز کا بھی مجھے شوق نہیں ہے، لیکن مجھے پتا تو ہے اس دنیا میں رہتا ہوں، نفس کا بنا ہوا انسان ہوں، تھوڑی دیر کا بھی تمہارا گانا میں سن لوں گا نا، بڑی دیر تک ایکو ہوتا رہتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی میرا انوکھا تو نہیں نا یہ؟ اور یہ میچ بھی دیکھ لوں نا، بڑی دیر تک سوچ آتی رہے گی یار پتہ نہیں چھکا ہویا سی کہ نہیں ہویا سی، اوور مکیا بھی سی کہ نہیں مکیا سی، کی بنیا پاکستان دا بننا میچ تو ہے۔
पाकिस्तान में दस ही बनना कुछ मैच तो बनता होंगे तो फिर गल कितों की कितने चली जाती जे एक फट्टी के बॉल नाल पूरे मुल्क का बनता होंगे तो फिर सारे छड्डदे वही पढ़ो फिर जाके एक ट्रैप्स है ना वो। ग्रीक सर्कस मैं आपको बताता चलूँ, ग्रीस के अंदर होता था, एम्परर होता था ना, तो जो बंदा रिबेलियन करता था ना, अगेंस्ट होता था, एतराज़ करता ये क्या कर रहे हो, उसको ना सर्कस में डाल देते थे। सर्कस में औरतें, घोड़े, हाथी, शेर, तो खूब शराब और खाना सारा दिन। वो 2 दिन वो उसको भूल ही जाता था किसकी बुराई करनी है। उसे ग्रीस सर्कस के बकायदा टर्मिनोलॉजी है ये, सर्कस में डाल देते थे। तो यही सर्कस ही चल रहा और क्या। वो मैं किसी जगह पर गया था तो एक बच्चा देख रहा था मोबाइल पे मैच, तो सेल्समैन गुजरा, कहता है क्या हुआ बाबर आउट हो गया, कहता नहीं, कहता आज नहीं आउट होने देना उसको। वो बच्चा भी कहता हाँ ठीक है। मैंने देखा ये क्या स्टोरी हुई, मुकम्मल स्टोरी है कि ये, और कंप्लीट हुई मेरे सामने। व्हाट इज दिस। सोचे इस पे, मजाक नहीं कर रहा, बाकी सोचे, गहराई में जाके सोचे। अगर आप एनालिटिक्स नहीं ना कर सकते, एनालिटिक्स देखिए, एनालिटिक्स इज अ वेरी बिग वर्ड इन आवर लाइफ। एक रिसर्च और एक एनालिटिक्स। रिसर्च का मतलब है केयरफुली एग्जामिनिंग ए सब्जेक्ट टू फाइंड समथिंग न्यू और लर्न समथिंग मोर। दिस इज रिसर्च, टू फाइंड समथिंग न्यू और लर्न समथिंग मोर, specify something, carefully examine something. This is research. And one is analytics. Analytics means you gather information for better decision making or for better knowledge. This is analytics. And you must not leave analytics from your life. ये बच्चा बेटा हमजा नाम है इसका, क्या नाम है, अब्दुल मुस्तफा नाम है। एनालिटिक्स नहीं छोड़नी, कभी नहीं छोड़नी। मैट्रिक के बाद अक्सर लोग ये ऐसे सब्जेक्ट्स जो एनालिटिक्स के होते हैं ना उसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ने चाहिए। आपका बॉस ये वाइब लेता है कि पता नहीं इसको मुश्किल चीज़ से डर लगता था, ये एल्गोरिथम, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल है और बड़ी ज़रूरी हैं। वी मस्ट नॉट लीव दीज सब्जेक्ट्स। दिस विल encourage us to go for analysis. And analysis is, this world is all about. You have to analyze the things. So analyze this word I have told you about, the match. If it's your hobby and if you just watch it, then just see anything which is the wastage of time. Your hobby must also be productive. आपकी हॉबी भी तो प्रोडक्टिव होनी चाहिए ना। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है यार दिमाग के लिए क्या करूं, उबलता रहता है। मैंने कहा दिमाग के लिए एक ही चीज़ है। कहता क्या? मैंने कहा खामोशी, जस्ट साइलेंस, खामोश हो जाओ बस, बड़ी देर तक खामोश रहो। वाईफाई भी ना हो, आप हो और आप हो, आप अपने साथ हो बस। दरख्त को जाके गले लगाए। अब आप कहेंगे सुभान भाई एक तरफ मैच छुड़ा रहे, दरख्त को गले लगवा रहे हैं। दरख्त को गले लगाना आम बात है। आप मेरी हर टॉक्स में होते हैं, क्या नाम है आपका? हाफिज साहब, दरख्त को गले लगाना है। आप समझ रहे मजाक कर रहा है? दरख्त को गले लगाना मजाक नहीं। वुड इज द मोस्ट रेयरेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स। व्हाट डू यू थिंक? लकड़ी इस पूरी कायनात की सबसे नायाब चीज है। आप कहेंगे सोना, कई प्लैनेट सोने के बने हुए हैं पूरे। हीरा, मुझे खुद पता है ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे हीरे के बने हुए हैं, पूरा प्लैनेट हीरे का है। लेकिन पूरी यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर लो, कोई दरख्त मिलेगा? कोई ना रेयरेस्ट चीज। दरख्त सांस लेता है, उसका जड़ होती है, ऊपर फल निकलते हैं, जिंदा चीज है, ऑब्जर्व करता है। पूरी 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 घंटे की मेरी वीडियो है इसके ऊपर कि हाउ ट्रीज दे कम्युनिकेट। एक जगह पे कटाई हो रही हो ना, वो दूसरों को सिग्नल भेज देता है कि इधर कटाई शुरू हो गई है, दे रिस्पॉन्ड। आपका ताल्लुक कितना मजबूत फितरत से है, ये तो कभी देखना आपको। आवाज़ें मुख्तलिफ किस्म की है, मसनूई भी हैं और नेचुरल भी हैं। नेचुरल आवाज़ें ही है, दरख्त की जो अजीब सी खामोशी सी होती है, खुशबू सी आती है जब वो ओस गिरती है, बड़ा मज़ा आता है उसके अंदर चलने का, जाने का। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। कराची के बारे में ना 3 मुख्तलिफ जुमले कहे गए पिछले दिनों, तीनों शोबिस की पर्सनैलिटीज़ ने कहे। एक ने जी कराची बड़ा गंदा है, एक ने कहा जी कराची जो है वो रहने के काबिल नहीं है, तीसरी ने कहा कि जो कराची को गंदा कह रहा है उसका दिमाग गंदा है।
ऑब्वियसली वो कराची का ही होगा कोई। कराची हमारा शहर है, कराची हमारा शहर है ना, हमारा पाकिस्तान। 95% फॉरेन ट्रेड कराची में, 35% इनकम टैक्स कराची में दिया जाता है। लेकिन जो एक स्टैटिस्टिक्स होती हैं, जो रिसर्च मैंने आपको बताया, यानी जो फोर्ब्स का लिवेबिलिटी इंडेक्स है उसमें 173 सिटीज़ को एनालाइज किया गया रहने के काबिल है, उसमें से कराची का नंबर 170 है, यानी दुनिया का चौथा बदतरीन शहर रहने के लिए। वो उनको क्या गर्ज है कि वो झूठ लिखे, कचरे से लेके पानी की खराबी तक, लॉ एंड ऑर्डर से लेके बेगरी तक, एवरीथिंग इज वर्स्ट, नो लॉ एंड ऑर्डर। और फोर्ब्स की रिसर्च है कि टूरिज्म के लिए दुनिया का दूसरा खतरनाक शहर ही है, दूसरे नंबर पे। कराची में आप जाएं, एक ऐसा बंदा आपको मिल जाए जिसका कभी मोबाइल नहीं उठाया गया, तो ये एक हैरत वाली बात होगी, वाकई हैरत वाली। तो चीज़ें कैसे सेट की जाती हैं? ऑब्वियसली जब आपकी पोर्ट ही नहीं तरक्की करेगी तो आगे कैसे निकलेंगे आप? पोर्ट है ना वहाँ पे, पोर्ट इज़ द बैकबोन। जिस तरह रेयर अर्थ के जो आज जिसके लिए पूरा यूएस चला हुआ है, अमेरिका, वो पूरी दुनिया के दौरे कर रहा है कि रेयर अर्थ मेरी तरफ आ जाए जी, चाइना के पास है। वो सारी दुनिया मिल भी जाए ना, 5 साल तक चाइना को नहीं टक्कर सकती, उसने बड़ी कोशिश की है। रेयर अर्थ से मुराद कोई ऐसा नहीं है कि वो रेयर बहुत है, वो 17 एलिमेंट्स हैं ये, उसकी एक्सट्रैक्शन मुश्किल है, उसको प्योरीफाई करना, दूसरों से अलग करना मुश्किल है, तो उस पर चाइना बहुत आगे निकल गया। F-35 का पता है, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, इसमें 400 किलो लगता है उसका स्टेलथ, उसकी मोटर वगैरह बनाने में 400 किलो उस अकेले पे लगना है, तो चाहिए। इट्स द हार्ट बीट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैं बात क्या कर रहा था, हया की, कि हया बड़ी जरूरी है। फरमाया कि एवरी रिलीजन इज हैविंग ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ इस्लाम इज हया। हर दीन का एक खुल्क है और इस्लाम का खुल्क हया है। हया इज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट यू, इट इज टू रिमाइंड यू। ये पाबंदी नहीं है, कोई असूलो जवाबत को बड़े कोई चार्टर नहीं है, ये सिर्फ याद दहानी है कि तुम्हारा जिस्म ये तुम्हारा कीमती तरीन सरमाया है, तुमने खुद भी इसको गलत इस्तेमाल नहीं करना और किसी को गलत इस्तेमाल करने भी नहीं देना। हया इज नॉट द लॉस ऑफ फ्रीडम, इट्स द रिटर्न ऑफ कंट्रोल। आज़ादी नहीं जा रही, बल्कि आप मान के देख लें, मुझे बताएं, जो हयादार आदमी होता है उसका कंट्रोल अपने आप पे और दूसरों पे ज़्यादा नहीं होता है कि नहीं? So when you guard your eyes, जब आप अपनी आंखों की हिफाजत करते हैं, आपकी दिल की आंख को क्लियर नजर आने लग जाता है। When you guard your tongue, जब अपनी जबान की हिफाजत करते हैं, आपकी बात में वजन आ जाता है, बात में असर आ जाता है। And when you guard your body, जब अपने वजूद की हिफाजत करते हैं, आपकी रूह मजबूत होती है। तो हया का बंदोबस्त करें। 2025 डिजिटल दौर, CS के लोग ज़्यादा, सबसे पहले सोशल मीडिया पर हर उस चीज़ को अनफॉलो करें, डिलीट करें, ख़त्म करें जो आपके अंदर ईगो और किसी भी किस्म का गलत जज्बा उभारती है। ये आसान है, अब जानबूझ के वहां जाते हैं। एक वक्त ऐसा था मेरी ज़िंदगी का, अंधोनाक वक्त था बहुत, मैं अपनी सुबह का आगाज़ अखबार पढ़ के किया करता था। अल्लाह अकबर। आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे विद द न्यूज़पेपर रीडिंग। आज भी करता हूँ, लेकिन आज डॉन पढ़ता हूँ। उस वक्त पता नहीं क्या कुछ पढ़ता था, लाशें, बेगरी, चोरियां, धमाके, डाउट पड़ जाता था अपनी लाइफ पे, अपनी ज़ात पे डाउट हो जाता था कि क्या कर रहा हूँ। यू हैव टू अनफॉलो दीज थिंग्स। आप में से बहुत से होंगे जिन्होंने अपनी फेसबुक अकाउंट डिलीट किया होंगे। मैं जानता हूँ बहुत से CS के बंदों को, लिंक्डइन यूज़ करते हैं, रहना तो है, नहीं जाते ऐसी जगहों पे, ऐसे अड्डों पे जिस जगह से कुछ खालिस सौदा ना मिले, अड्डे ही छोड़ देते। और नंबर 2, अपनी नज़रें झुका लो बंदों के सामने भी और उस लाइफस्टाइल से भी जो लाइफस्टाइल आपको ख़राब करता है, जो आपको नहीं कुछ कर सकेगा। और नंबर 3, लिबास का ख्याल करो, वो लिबास पहनो जो अल्लाह को पसंद है और जो बंदों में भी बंदा बाइज्जत रहता है, वो लिबास पहनो।
ये हया की कोर चीज़ें मैंने आपको बताई। मेरी ताई अम्मा का इंतकाल हुआ तो आज उनका जनाजा था। तो मैंने एक बड़ी बात नोट की कि ना हम इंसान ऐसे ही रहते हैं जैसे हैं, है ना। एक तो कोर ह्यूमन वैल्यूज़ है ना, जिसमें डर है, खुशी है, सर्वाइवल है, वो तो सब में एक जैसी हैं। लेकिन कोई बात होती है एक बंदे के अंदर, है ना डॉक्टर साहब कि ये बंदा ऐसा ही है, ये बंदा ऐसा है। इसे क्या, इसे इसे कहते हैं कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स, इननेट बिहेवियर। वो पॉलिश होता है, कंट्रोल होता है, इरेज नहीं होता। ये पता कौन सा है? जो फौजी भर्ती, अच्छा ये बंदा कभी भी इस हैंड रिटन पेपर में नहीं इसका पता चलता। आपने नोट किया हर मुश्किल चीज में एक इंटरव्यू होता है जिसे बंदा फड़काते हैं या रखते हैं, है ना। सीएसएस बड़ा प्यारा आर्टिकल लिख दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो इंटरव्यू है ना आखिरी, इसमें रखेगा बारह करेगा। आईएसएस भी है ना, बड़ा सही गया, सब कुछ कर लिया ठाक ठुक, लेकिन वो जब बैठेगा जनरल के सामने, है ना, आपका भी बड़ा जबरदस्त जनाब सीवी बड़ा चमकदार है, लेकिन वो सीईओ के सामने जब बैठना इंटरव्यू में, यकीन करें उसे बस आप पसंद आ जाए, चाहे आप कोरे हो, वो भर देगा आपको सीईओ। क्या चीज देखते हैं वो? एक पुलिस को भर्ती करना है और एक बंदा सामने बैठा है, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, परेशान सा है, फॉलोअर नहीं है, उसको पुलिस भर्ती करें कभी? अब देखे कैसे होते हैं, पुलिस वाले से मिले जरा, पता ना कैसे होते हैं। ओ भाई बाय डिफॉल्ट कोई चिप गई होती है अंदर, ओ यस सर करना उसे, और ये जरूरी है, जॉब की नोयत ऐसी। अंबानी की रिलायंस में 4 बंदे बैठे थे ना एक ऑफिस में, बंदा कहता है यार मैं सोच रहा था, कहता एक मिनट है, सोच रहा था, तुझे सोचने का किसने कहा? वो तुझे सोचने के लिए नहीं रखा, तुझे करने के लिए रखा है। जा चला जाए यहाँ से, सोचने के लिए बैठे 30 पे रखे उसने पूरी रिलायंस को चलाने के लिए, बस सोचते हुए हम करते हैं। यू हैव टू, ये जो कोर पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है ना, असल में मेरे कुछ कजन्स थे, दूर के कजन्स बनते हैं, जो कि आज मुझे कोई 20-22 साल बाद मिले, तो बड़े अकम्प्लिश्ड हो चुके हैं, वो बड़े आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैंने नोट किया कि वो कोर पर्सनालिटी ट्रेट उनकी वही थी जो 20 साल पहले थी। यानी उनका रवैया वही था, फीलिंग और डिज़ायर्स और वो इम्प्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी सेम था, बिल्कुल उसी तरह फिजिटिंग कर रहे थे, वो बात करने का अंदाज भी वही था। ये फर्म होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई मॉडेस्ट होता है, कोई हार्ड होता है, वो वैसे ही रहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो हमारी कोर पर्सनैलिटी ट्रेट का वाकिफ है ना, हमारे माँ बाप है, उनसे नहीं हम गुच्छा दे सकते उनको, बाकी तो चलता रहता। तो मैं फिर बता रहा हूँ, they cannot be changed, you can either polish them or you can control them, you cannot erase them। ये ना हो गया आप समझे कि शायद ये मैं बिल्कुल ही फारा कर गया, कंट्रोल होना चाहिए। आप उनको वेरिएशन में लेकर आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स फिनिश टुडेज डिस्कशन कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें लेकर आनी है, उसमें आज जो हमने सीखा वो शुक्र है। और ये कैसी चीज़ है जिसके लिए कोई ट्रेनिंग क्लास की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं का हमने शुक्र अदा करना है। और इसके लिए बड़ा बेहतरीन जुमला वो अल्हम्दुलिल्लाह का है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं उन नेमतों से जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, उन नेमतों की लिस्ट बनाए। आप हैरान होंगे, मैंने गैर मुस्लिम चलने दें, आप मोबाइल है वो उसकी बात करते। आप हैरान होंगे सुन के कि वो लोग जो कि मुसलमान नहीं भी हैं, उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने कॉमन देखी है, तकरीबन सबकी ज़िंदगी में देखी है, सबकी ज़िंदगी में ना ये एक चीज़ कॉमन देखी है, ये है ग्रेटिट्यूड जर्नल। इन सब ने ना एक लिस्ट बनाई हुई है कि ग्रेटिट्यूड किस किस चीज़ का हम कर सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। यानी अगर आपके पास बांटने के लिए इतना नहीं है, शुक्र करने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ बीच में से छूट भी गया है तो फिर भी आपके पास शुक्र करने के लिए बहुत कुछ है। तो शुक्र अदा करें,
اس بات پہ ضرور شکر ادا کیجیے گا کہ نبی پاک کی امت میں ہیں ہم، اس بات کا نا شکر ادا کیا کریں، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ نبی پاک کی امت میں تو نے پیدا کیا۔ مجھے بتائیں کتنی بڑی سعادت ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ صرف یہ ایک بات شکر کی آپ لے لیں، اور تو نے ہمیں اہل ایمان میں پیدا کیا۔ یو مسٹ بی کانفیڈنٹ آن دیٹ، یقین کریں اس پہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں۔ آج دنیا میں انتہائی زیادہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ باہر گئے ہیں اور کئی جائیں گے باہر جا کے آپ کیا کریں گے؟ کسی کا کوئی کلپ، کسی کی کوئی بات آپ کے عقیدے کو فارغ کر دے گی۔ عقیدہ از دا مین کور یو کین سے تھنگ ان آور لائف۔ کور بلیف کیا ہے آپ کا؟ لکھیں اس کو، 4-5 چیزیں لکھیں کہ میرا کور بلیف کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان ہوگا تو کس انداز کا ایمان ہوگا؟ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کیا بات میں نے عقیدے میں رکھنی ہے؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے؟ پچھلے دنوں میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ نا ماں کے ساتھ اللہ کو نا تھوڑا سا ریزمبل کیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے بات آ گئی؟ اللہ تو ایک بادشاہ، شہنشاہ، قادر مطلق کا ایک ہے، ماں تو ماں ہے، کوئی ریزمبلنس دور نزدیک تک نہیں ہے۔ ہم تو غلاموں کی طرح اس کے، اب نوٹ کریں، ہمیں اس کی بات ماننی ہے بس۔ وہ بڑی سے بڑی جو لغزش ہے اس کو معاف کرتا ہے، بغاوت کو نہیں معاف کرتا۔ بڑی سخت سزاؤں کا اس نے کہا ہوا ہے۔ وہ کسی کی سزا کسی اور کو نہیں دیتا، چھوٹی سی بات پر پکڑ بھی سکتا ہے، چھوٹی سی بات پر بہت زیادہ عطا بھی کر سکتا ہے۔ یعنی یوں امپریشن لیں اس کا۔ یعنی لکھتے ہیں امام غزالی کہ کم از کم اللہ سے ایسے تو ڈرو کہ جنگل ہو، تم اکیلے ہو، سامنے شیر آ جائے بغیر کسی آڑ کے، اب کیسے ڈرو گے؟ اتنا تو ڈرو اللہ سے۔ یہ ڈیمانڈ ہے، توحید کی ڈیمانڈ ہے، اللہ سے اتنا ڈرو۔ حضرت ابو بکر کی یہاں پہ لائنیں پڑی ہوئی ہیں رو رو کے، حضرت ابو بکر ہیں وہ۔ حضرت علی اونچی اونچی آواز سے استغفار کرتے تھے، کئی گھروں تک آواز جاتی تھی۔ کون ہے وہ؟ مولا کائنات ہیں۔ حضرت عمر اپنا ہنٹر اٹھا کے اپنی پنڈری میں مارتے ہیں کہ او عمر ڈر جا، تیرا محاسبہ ہونے والا، تو کس چکر میں 28-27 لاکھ مربع میل پہ حاکم وقت کیا کر رہا ہے؟ کہ کیا تھی یہ چیز؟ مجھے بتائیں۔ گناہ کا تو تصور بھی نہیں ہے نا، تو کیا تھا؟ یہ تھا کہ جو رتبے ملے ہیں وہ چھن نہ جائیں، تو چھیننے والا کون ہے؟ جس کا سب کچھ ہے۔ ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں خانہ کعبہ گیا، 35 صحابہ کو میں نے خانہ کعبہ میں سخت ڈر کے عالم میں دیکھا، انتہائی ڈرا ہوا دیکھا۔ میں نے پوچھا، ڈر کی ایک ہی وجہ تھی کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے۔ صحابی ہے، قطعی جنتی ہے، استاد کون ہے؟ معلم کون ہے ان کا؟ پھر یعنی یہ بھی ادھر سے ہی سیکھا ہے نا ڈر، یہ ڈر بھی وہیں سے سیکھا ہوگا نا، کیا کہ یار ایمان نہ کہیں سلب ہو جائے، اور مجھے میرے بلیف کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، ادھر سے کلپ گزرتا ہے، میرا بلیف بھی اسی راہ پہ چل پڑتا ہے، پھر ایک آتا ہے وہ موٹر وے پہ لے آتا ہے، پھر پگ ڈنڈی پہ ڈال لیتا ہے۔ او بھائی نو کہنا سیکھو، نو ٹو تھاٹس، نو ٹو کانسیپٹس، نو ٹو ایوری تھنگ، نو ٹو اے پرسن۔ کوئی بندہ آپ کے بلیف میں انٹرفیئر کرا، اس کو کہہ دیں تیرا میرا کام ہے یہاں پر اکٹھے بیٹھ کے جاب کرتے ہیں، اس موضوع پہ کلام نہیں ہوگا۔ چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہو رولر کوسٹر میں، یہ نہیں پتا کہ 2 دنوں کے بعد تو آپ کے پاس علم، تو آپ کے پاس الگورتھم کا، پائتھون کا ہے علم، آپ کے پاس C++ کا ہے، ورڈ پریس کا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، اس چیز کا علم نہیں ہے آپ کے پاس۔ اس کے بعد بھی 2 چلو 4 دلیلیں ہو جائیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ لڑائی۔ علم کا نقطہ اگر علماء میں جائے ارتقاء کا باعث ہے، علم کا نقطہ جہلاء میں جائے تو یہ فتنہ ہے۔ آپ ایک پکی دلیل سے 50 علماء کو چپ کرا سکتے ہیں اگر دلیل مضبوط ہے، لیکن 50 پکی دلیلوں سے ایک جاہل کو چپ نہیں کرا سکتے۔ آؤ میرے پاس، لیے بات میری ہے، ایک پکی دلیل سے 50 علماء خاموش ہو جائیں گے، لیکن 50 پکی دلیلوں سے ایک جاہل خاموش نہیں ہوگا۔ اور اس معاملے میں جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا، اتنا کہاں پڑھے ہیں ہم، درس نظامی کی ہم نے، کورسز کیے، کچھ نہیں کیا ہوا۔ تو کسی دن بیٹھو اور کو میرا جو عقیدہ وہ میرا عقیدہ ہے، میں اس پہ ایڈمنٹ ہوں، آئی ایم ایڈمنٹ، میں سخت ہوں اس کے اوپر، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، لیکن میں تم سے بحث نہیں کروں گا۔ براہ کرم اس بات کو سیریس لو، آج جا کے یہ کرو، چاہے جتنے مرضی پرانے دینی ماحول میں آنا جانا آپ کا ہے، بڑا کچھ آپ کو پتا ہے، لیکن اس کو پکا کرو، کیونکہ اس میں باقی جو کچھ آپ کو پتا ہے نا، اس میں آپ کا کوئی دشمن واضح نہیں ہے۔
आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा पता है, शोएब अख्तर बैठा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा बंदा है, ये इतनी जॉब है इसकी अमेरिका में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका दुश्मन कौन है? कौन इसका दुश्मनी करेगा? कोई नहीं करेगा, आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ से अमेरिका चला जाएगा, उधर से ऊपर चला जाएगा, खूब पैसे कमाएगा, बंगले बना लेगा, कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन जो 4 लाइनों का ईमान है ना इसका कि अल्लाह एक है, वो कादिर मुतलक है, ना उसका कोई शरीक है, ठीक है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी अता से सब कुछ अता फरमाया है, और अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ने फरमाया इनके साथ जंग, मेरे साथ जंग है, ये 4-5 बातें हैं ना मोटी मोटी। इन बातों पे इसका दुश्मन शैतान है, जो खून की रगों के साथ है, जो नाक में रात बसर कर रहा है, जो हर वक्त चाह रहा है इसका ईमान छीन लूं, जो मरी हुई मां के रूप में तब आएगा जब इसका वक्त नज़ा होगा, वो इन 4 लाइनों के पीछे है। अब मुझे बताओ इन 4 लाइनों की हिफाजत कैसे होनी चाहिए? जितना बड़ा खजाना उतना बड़ा पहरेदार, जितना बड़ा ट्रेजर उतनी हिफाजत, तो इससे बड़ा क्या खजाना होगा यार। मेरे मामू का 4 दिन पहले इंतकाल हुआ, वो गए थे नमाज पढ़ने, वापस आए, एक उल्टी किए, फिर वापस सांस नहीं आया। मेरी ताई अम्मा का आज इंतकाल हो गया। वहाँ मैं सुन रहा था, लोग रेफरेंसेस लेते होते ना, वो मतलब ऐसे कि वो जी आजकल लोग का आजकल मरंदा सीज़न है, मतलब कह रहे जी वो तेरा भी मर गया, उदा ही मर गया, आजकल मरंदा बड़ा सीज़न है। फिर एक ने और कहा जी जो मौसम जा रहा होंगे ना तो मरंदा सीज़न स्टार्ट हो जाता है। मैंने इसको मजाक नहीं लिया, मैंने इसको इबरत ही ली कि एक तो ये बात गलत है, लेकिन ना एक बात होती है, जो ये बड़ी उम्र के लोग बात कर रहे हो ना, ठीक है, हर बड़ी उम्र के बंदे की बात नहीं माननी चाहिए, बिकॉज इडियट्स दे ऑल्सो ग्रो ओल्ड। अगर एक बंदे ने जिंदा रहना है वो जिंदा तो रहेगा, अगर पढ़ा लिखा नहीं तो फिर वो इडियट पहले भी था तो वो बड़ा इडियट हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसका कुछ तजर्बा तो है। जिस तरह एक डॉक्टर साहब थे, उनको एक माई ने कोई बात कही, तो डॉक्टर साहब ने उस माई की बात को ना ऑनर किया, डॉक्टर तजर्बाकार था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये तो एक ले मैन है, आप इसकी बात को ऑनर कर रहे हैं? कहते सुभान भी ठीक है, ले मैन तो है, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में 500-600 बच्चे तो देखे ही होंगे ना, तो उन बच्चों को देख के ये जो बात कर रही है, तो मैं इसलिए इसको ज़रा तवज्जो दे रहा हूँ। ये बात बड़ी ज़बरदस्त है। वो कद की कोई बात थी बच्चे की, उसने कहा ये जिसने बात की ठीक है अनपढ़ है, लेकिन इसको पता तो है ना। तो मैंने ये फील किया कि यार वाकई इंसान की ज़िंदगी को पता नहीं है। वो कहते नहीं आजकल बड़ा मशहूर है कि जी आज भी कह रहे थे मेरी ताई अम्मा के जनाजे पे, वो जी बस कोई लोग होंगे ने खांदे पींदे तो एकदम ही चले जाते हैं तो कुछ बोझ बन जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये जो बेचारा इसमें आ गया कि उसकी अलालत बढ़ गई और वो बेड रिडन हो गया, तो अब उसकी गलती है इसमें, मरना तो कोई नहीं चाह रहा, वो इस हालत में आ गया, तो ये जुमले उसको तकलीफ़ नहीं देते होंगे, तो कोई ऐसी बात जो तकलीफ़ देती है वो तो नहीं करनी चाहिए। तो ये जुमला ख़त्म करें कि जी चलता फिरदा चला गया तो बड़ी खुश नसीबी है तो ए बिस्तर ते पिया है। वाई यू सेइंग दैट? दिस इज़ नॉट ए गुड सेंटेंस। हाथ में इसम नाम था ना, इससे मतलब बहरा, डम, जो सुन नहीं सकता। तो हुआ क्या था कि एक औरत उनके पास आई थी, उस औरत ने मसला पूछा, तो पूछते पूछते उस औरत की हवा खारिज हो गई। अब औरत हो, आलिम, इतने बड़े वली के पास बैठी हो, हवा खारिज हो जाए, उस बेचारी की खिफत का क्या आलम होगा। तो आपने फ़ौरन क्या कहा, ऐसे ज़ाहिर किया कि मैं सुनना, मुझे सुनता नहीं हूँ, मैं ऐसे ज़ाहिर किया। हाँ क्या बात, वो बड़ी मुतमईन हो गई कि उनको तो इतना सुनाई नहीं देता, और जब तक वो ज़िंदा रही आपने ये रखा कि मुझे कम सुनाई देता। वो बताए मुझे, इतना इंसान की केयर करने का हमें इस्लाम सिखा रहा है, इतनी केयर करने किसी के सेंटिमेंट्स और इमोशंस की। तो ये जुमला कहना सही नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, ना आपके वालिद के कंट्रोल में, अगर किसी के वालिद इसमें, बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे अपने बाप की माँ की कितनी खिदमत का मौका मिल रहा है। हाँ, मेरी जो ताई फौत हुई है, एक बच्चा, बाकी सारे अमेरिका वगैरह में थे, जो बेटा उनका यहाँ था, उसने सब कुछ किया अपनी माँ का। शी वॉज ऑन बेड 1 ईयर से, सब कुछ किया, कितना उसके मर्तबे बड़े हुए। तो इस तरह की फजूल बातों को छोड़ें। ख़त्म कर रहा हूँ बयान को। सबसे पहले तो ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। रात को 10 दफ़ा 10 टाइम्स, डेली के 10 टाइम्स, देखिएगा किस तरह चीज़ें बढ़ती हैं, नेमतें बढ़ेंगी, फ़ायदा होगा। और नंबर 2, अपने ईमान की हिफाजत करें, इसके लिए आते जाते रहा करें। माजरत के साथ जिधर भी आप वर्क प्लेस में जाके काम करें ना, वहाँ पर यूँ नहीं बात ईमान की बताई जाती। और हम इंसान हैं, समटाइम्स वी नीड someone to come and repeat the same thing in front of us
so that we can act. याद रखें। पिछले दिनों मैं एक जगह पे गया तो मैंने वहाँ जाके बात की, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे थे, स्मॉग का नया नया आया था तो इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा था। मैंने बात की, मैंने कहा देखिए जी हवा है, हम खाने और पानी की बात तो करते हैं, हवा की बात नहीं करते। हालांकि हवा ज़्यादा कीमती है। जब इंसान भागता है, एक्सरसाइज करता है, वर्कआउट करता है तो मल्टीप्लाई बाय 3 सांस की स्पीड हो जाती है, क्योंकि मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अगर हम शुगर खाते हैं और इंसुलिन ना पैदा हो तो शुगर फारग है। अगर हम हवा अंदर लेके जाते हैं, हीमोग्लोबिन ना हो तो हवा भी फारग है। तो वो हवा मल्टीप्लाई बाय 3 है, लेकिन वो हवा हम इसलिए इनहेल कर रहे हैं कि हम ठीक हो, लेकिन हवा इतनी गंदी हो गई है। दिस इज ए कॉकटेल, दिस हवा इज द कॉकटेल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, डस्ट एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इतनी गंदी होगी कि हम अंदर लेके जाते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इसका क्या किया जाए? वर्कआउट छोड़ दें, एक्सरसाइज छोड़ दें? ये तो नहीं होना चाहिए। तो उसके प्रिकॉशंस रखें। ऐसे वक्त में बाहर निकलें जिस वक्त के अंदर एक्सरसाइज के लिए माहौल अच्छा है, कम आलूदगी है, पर प्लांट्स लगाएं और कोई काम करें। तो मुझे बड़े लोग मिलते आगे, कहते सुभान भाई हम रोज देख रहे थे, कर रहे थे, लेकिन आज आपने बोला है ना तो हम वाकई मास्क पहन लेंगे तो सारा कुछ करेंगे। वी नीड समवन टू रिपीट दिस थिंग। माँ भी तो कहती है ना खाना खा लो, बीवी भी बताती है कि अब कोट निकालनी है, वो गर्म सर्दियाँ आ गई। वी नीड समवन टू रिपीट। तो याद रखें, रिपीट इज नॉट बैड। द होल एजुकेशन सिस्टम इज डिपेंड ऑन रिपीट। रिपीट कर रहे हैं बच्चे, आप भी रिपीट कर रहे हैं। नमाज है 5 टाइम रिपीट। तो रिपीट द थिंग्स। आए ऐसी जगह पे जहां रिपीट किया जाता है। अब कुछ लोग वो रिपीट जरा अच्छे अल्फाज से करते हैं, फसाद और बलागत के साथ, किस्से वगैरह सुना के। कुछ लोग डायरेक्ट रिपीट कर देते हैं। दोनों जगह ठीक है, आप अपने आप को खुला रखें।